ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब क्या? रेडियस 2 of the earth is becoming half of radius 1 without change in the mass. Mass is constant. What will be the new duration of the day? हमको पता है आज का टाइम पीरियड है 24 आवर्स डे का. जब रेडियस आधा हो जाएगा तो हाउ मच विल बी द टाइम पीरियड? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज रेडियस r1 एंड ये अर्थ घूम रहा है with an angular speed omega 1 and the time period is t1 which is 24 hours. सही है ना? so rotating with omega 1. अच्छा क्या हुआ गया? radius becomes half. It shrinks but mass is going to remain the same. ये भी m है, ये भी m है, but radius हो गया r2. क्या ना इसे omega 2 बदल जाएगा. This is omega 1. ओमेगा 2 चेंज हो जाएगा. ओमेगा 2 चेंज हो गया तो टाइम पीरियड विल आल्सो चेंज. तो आपको शायद क्वेश्चन समझ में आ गया है. कैन एनीवन टेल मी ये ऐसी चीज श्रिंक हो गई, व्हाट इज कांस्टेंट? कैन आई से नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0? श्रिंक करने में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा. जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, कैन आई से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम घूमने के लिए क्या था बेटा? I1 ओमेगा 1. फाइनल एंगुलर मोमेंटम बेटा इज I2 ओमेगा 2. हमको पता है यहाँ से I1 दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, इट विल बी 2/5 m1 r1 स्क्वायर. ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 2π/t1 इज 2/5 m2 r2 square into 2π/t2. 2/5 m और m same, 2π same, so can I say r1 square upon t1 equals r2 square upon t2? तो बोले r1 square is r1 square, t1 is 24, r2 square is half of r1 का square, ये हो जाएगा 1/4 r1 square upon t2. Now this and this will cancel, so t2 will be 24/4, that is 6 hours. So the duration of the day has become 6 hours. पहले था 24 hours, अब हो जाएगा 6 hours. अच्छा इसका एक शॉर्टकट आप लोग याद रखिए. ओके, short trick is there. If mass is constant and if r2 becomes 1/n of r1, then time period will become 24/n square. Now देखो इधर कंपेयर करो. If r2 becomes half of r1 and if r2 becomes 1/n of r1, so how much is the value of n? 2. n is not half, n is 2. तो n का वैल्यू इधर पुट करेंगे, so it will become 24/2 square is 4. It will become how much बेटा? 6 hours. आप देख सकते हो डायरेक्टली आंसर आ गया. So this short trick will only be valid when the mass is going to remain constant, otherwise not. I hope you all have understood this question. We'll go to the next question. We are doing odd numbers. Question number 3 पर शुरू करते हैं. Find the moment of inertia of a uniform square plate of mass m and edge a about one of its diagonal. ठीक है भाई. उसका साइड is A and A. ठीक है, तो ये A है, मास m है. I want to find moment of inertia about one of its diagonal. और एक diagonal बना सकता हूँ? बना सकता है. शायद आपने ऑब्जेक्टिव में किया था कि moment of inertia passing through z axis is ma square by 6. याद है ना ये? इसको पकड़ते हैं x, इसको पकड़ते हैं y, तो ये रहेगा z. Can I apply perpendicular axis theorem? Can I say iz will become equal to ix plus iy? iz is by beta ma square by 6. अच्छा ix and iy both are in the same plane and both are the same. ये सेम ही तो है, तो उसको पकड़ो 2i
So what will be I only? ma square by 12. Did you understand this thing? So this is ma square by 12. We'll go to the next question. Question number 5. It is important. Huh? 2 point masses are there. M1 and M2 are joined by a weightless rod of length R. Calculate the moment of inertia passing through center of mass and perpendicular to the rod. अब ध्यान देना, कह रहे massless rod है, दो particles है यहाँ पर, one is M1 and other is M2, and this distance is R. बोलो, I want to find moment of inertia passing through center of mass. इस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास दिस सिस्टम. अच्छा ये मासलेस रॉड है, बराबर है. सबसे पहले हमको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा इसका. सिंस आपका सेंटर ऑफ मास चैप्टर नहीं हुआ है, मैं आपको यहाँ पर तरीका बता देता हूँ. आप लोग जब हो जाएगा तो प्लीज समझ जाएगा. लेट दिस डिस्टेंस बी r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. लेट दिस डिस्टेंस बी r2. if I apply law of moment of mass, okay, laws of moment of mass about center of mass, so then we can say that m1 r1 will become equal to m2 r2. You must have done it in school na, anti-clockwise moment is equal to clockwise moment of the mass about the center of mass. ये पहला वाला बराबर है क्या? moment of mass about center of mass लगाते हैं. So m1 r1 is equal to m2 r2. दूसरा वाला कहने से r1 plus r2 is r. बोलो, ये आपको सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया जाएगा. यहां से आपको r1 का वैल्यू मिलेगा कि आप सॉल्व करेंगे तो आपको r1 का वैल्यू मिलेगा m2r अपॉन m1 प्लस m2. r1 will be m2r अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली व्हाट विल बी r2 m1r. ये आपको सॉल्व करके मिलेगा, मुझे तो आता है इसलिए मैं लिख रहा हूं. बोलिए, तो ये आपको मिल गया. हाँ बेटा, बट ये थोड़ी चाहिए हमको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल सिस्टम विल बी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. कैन आई से m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. m1 r1 स्क्वायर, तो m1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर. बोलो. अच्छा, दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे? m2 r2 स्क्वायर को लिखेंगे m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर. बोलते हैं व्हाट इज कॉमन बेटा? m1 m2 कॉमन है. देखो m1 m2 इधर से कॉमन है. m1 m2 कॉमन निकाल लिया, r स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया, बचा गया m1 प्लस m2. और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर. तो ये और ये कट जाएगा. सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना मिला बेटा? हाफ. यस और नो? सॉरी, हाफ नहीं. m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू r स्क्वायर. आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि इस चीज को बोलते हैं म्यू इनटू r स्क्वायर, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास. m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को क्या बोलते हैं बेटा? म्यू बोलते हैं. म्यू को क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास इनटू r स्क्वायर. सो एक्चुअली जब भी ऐसे समय the standard result will be moment of inertia about the center of mass will become mu into r square, where what is mu? It is reduced mass, and the formula will become m1 m2 upon m1 plus m2. I hope everyone has understood this thing. कोई बड़ी बात नहीं है, simple है question. Question number 5 is done. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग question number 6 पर आते हैं. Question number 7.
हाँ बेटा, a wheel rotates around the stationary axis so that rotation angle theta varies as at square. A is given as 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ भाई, दिया हुआ है, करेक्ट है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन at a point on the rim at time is equal to 2.5 second if the linear velocity at that point is 0.65 मीटर पर सेकेंड. बोलो. और नेट एक्सेलरेशन कौन सी पॉइंट का ढूंढना है? वही पॉइंट का जिस पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है, उस पॉइंट को नाम हम लोग पकड़ते हैं ए. तो क्या कह रहा है? देखो बेटा, थीटा दिया हुआ है. थीटा कितना दिया हुआ है? ए टी स्क्वायर. ए इज 0.2 टी स्क्वायर. ये मिला थीटा, करेक्ट है ना? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मिलेगा ओमेगा. कितना हो जाएगा? 0.4 टी. इसका और एक डेरिवेटिव लेंगे तो लेंगे अल्फा. अल्फा विल बिकम 0.4. अब आप डेटा देखकर बताओ कि क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. आपको दिख रहा है अल्फा है. ओके, सो इट इज एन एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन. इट इज अ नॉन यूसीएम. एंड नॉन यूसीएम में कहीं पर भी किसी समय पर देयर आर टू एक्सेलरेशंस. वन इज centripetal acceleration and other is beta tangential acceleration, and the net acceleration will become the vector sum of both of them. बोलिए, ये आपको पढ़ा चुके हैं हम लोग. हाँ बेटा, तो हमको सबसे पहले ACP निकालना है. ACP का फॉर्मूला इज व्हाट सर? इट इज ओमेगा स्क्वायर आर सर. बोलिए. अच्छा सर, ओमेगा कितना है? ओमेगा फॉर्मूला मेरे पास है. ओमेगा इज 0.4 टी का स्क्वायर इनटू आर. सर टी मालूम है? हाँ सर टी मालूम है 2.5. आर कहां से ढूंढेंगे सर? आर कहां से ढूंढेंगे? कैन आई से आर विल बी वी बाय ओमेगा बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. यस और नो सर? वी इज इक्वल टू at any instant of time v will become v tangential will become r omega at that instant. बोलिए. so r at that instant, r जो रहेगा will become v by omega at that instant. बराबर है कि नहीं है? 0.4 t square, ये तो ऐसे ही लिखा, into v. v को लिख सकते हैं बेटा, कितना लिख सकते हैं? 0.65 upon omega. omega is given as 0.4 t. तो ये एक और ये कट गया. तो ACP का फॉर्मूला क्या मिला आपको? ACP का वैल्यू आपको मिलेगा 0.4 into t into 0.65. So this will be 0.4 into t is what beta? 2.5 into 0.65. So 2.5 into 0.4 होता है 1. 1 ही होता है ना. 2.5 4 ज़ा 10 होता है. ये 1 हो गया into 0.65. So can I say ACP का वैल्यू will become 0.65 meter per second square? Yes or no? I hope you are understanding what's happening. कि नहीं समझ में आया? क्या हम लोग सही कर रहे हैं? हाँ सर हम लोग सही कर रहे हैं. ये 0.4 है, t है, ये स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया ना v बाई ओमेगा से. अच्छा और क्या चाहिए आपको? AT चाहिए. AT का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? r अल्फा. यस और नो? अच्छा r क्या मिलेगा? r will become v बाई ओमेगा at that instant into अल्फा at that instant. v कितना है at that instant? दिया हुआ है 0.65. ओमेगा कितना है at that instant? 0.4 into t and alpha at that instant is given as 0.4. yes or no? ये कट गया और ये कट गया तो कितना आया? 0.65 by t and time is given as 2.5. so आप ये at यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. बोलो. so ये एक आपको मिला ACP. दूसरा वाला आपको क्या मिला? AT. आपको अभी पता है आपको क्या करना है. A net will become under root of AT square plus ACP square and you are going to get the answer in meter per second square. This is how you do it. बोलिए. clear है? and it is a non uniform circular motion. Why sir? because alpha है
और जब अल्फा रहेगा तो नॉन यूसेबल रहेगा। अगर अल्फा 0 होता तो क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाता, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन होता, दैट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद नहीं रहता। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, a particle of mass m is projected with velocity v at an angle theta with respect to horizontal. Find the angular momentum about the point of projection when it is at the highest point. अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल हमने फेंका विद स्पीड u at an angle theta with respect to horizontal. बोलो क्या होगा इसका, क्या होगा भाई? It will follow projectile motion. कह रहा है जब वो टॉप स्पीड पर और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो उसका स्पीड कितना रहेगा बेटा? u cos थीटा। बोलिए, आई वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज o. आई वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o ऑफ दिस व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम फॉर अ गिवन पार्टिकल इज m। हाँ भाई क्या है? l बार विल बिकम r बार क्रॉस p बार। इसको लिख सकते हैं r बार क्रॉस p बार को लिख सकते हैं बेटा mv बार। तो ये तो आपको पता ही है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या हो जाएगा? mv इंटू r परपेंडिकुलर। बोलो, एंड हाईएस्ट पॉइंट का फाइंड करना है। व्हाट इज m? m इज m ओनली, v इज u cos थीटा, r परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो, अगर इसको पीछे खींचूं मैं, हाँ भाई, तो r परपेंडिकुलर इज दिस। देखो भाई, mv into r perpendicular. So r perpendicular is nothing but your maximum height. So angular momentum about point O, magnitude form will become m is m, v is u cos theta into r perpendicular is h maximum. And आपको h maximum का फॉर्मूला शायद पता है, it will become u square sin square theta by 2g. बोलो, so this will become m u cube cos theta sin square theta by 2g. अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन विल बी टेकन फ्रॉम r bar to p bar. योर फिंगर्स हैज टू बी टेकन फ्रॉम r bar to p bar. लेकिन ऐसे r ऐसे है, p ऐसे है, p इज mv ना बेटा, सो r bar to p bar, तो अंगूठा अंदर आएगा, मींस द डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज एंड the direction of the thumb is inside. I hope you all have understood this question. Yes or no? और यहाँ पर u square u cube हो गया. Okay sir, so this is also fine. A very important question, question number 10 हम लोग पढ़ते हैं. Okay, बीच में put up this question. Linear mass density of a rod depends on lambda, which is alpha x plus beta. ये इसका linear mass density है. Linear mass density मतलब mass per unit length. और आप देख सकते हो जैसे x बढ़ता जा रहा है रॉड पर, वैसे वो भारी होता जा रहा है. इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अल्फा x. सो कैन आई से इट इज द फंक्शन ऑफ x. तो जैसे आप एक्सिस से दूर जाएंगे वो रॉड भारी होता जाएगा, उसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? लीनियर मास डेंसिटी बढ़ता जाएगा. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू a एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज l. ठीक है, हमको मालूम है नॉन यूनिफॉर्म चीज है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा. अच्छा, मैंने आपको स्टेप्स बताया था. सिलेक्ट, सबसे पहला स्टेप 1, सिलेक्ट ओरिजिन. ओरिजिन वो है जहाँ पर फाइंड करना है. तो ए इज द ओरिजिन, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन. यस और नो? सेकंड, इज दिस बॉडी 1D 2D और 3D? आपको मालूम है 1D है. मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ. मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ. So I want to find mass per unit length. बट एक अच्छी बात है कि क्वेश्चन में ही mass per unit length that is lambda के फॉर्म में दिया हुआ है. That is alpha x plus beta. ये दिया हुआ है. This is given. नहीं दिया रहता तो मैं फाइंड करना mass per unit length. Understand what's happening? बट यहाँ पर एक अच्छी बात है कि mass per unit length आपको दिया गया है. अगर ये 2D बॉडी होती तो मैं लिखता mass per unit area. अगर ये 3D बॉडी होती तो मैं लिखता mass per unit volume. I hope you all have understanding. तीसरा बात, go to x, take dx. यहाँ पर हमको एक्सिस से, ओरिजिन से x दूरी पर जाना है और एक छोटा एलिमेंट पकड़ना है. तो इसका लेंथ कितना रहेगा बेटा? dx रहेगा. एंड इसका मास कितना रहेगा? dm. स्टेप 4, कैलकुलेट dm. dm क्या रहेगा? dm विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ.
व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ? मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लैम्बडा, ये दिया हुआ है, तो कितना दिया है? लैम्बडा x इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है तो dm। क्या इसको और अच्छा तरीके से लिख सकता हो? लैम्बडा की जगह लिख सकते हैं अल्फा x प्लस बीटा इंटू डी एक्स, ये हो गया dm। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर क्या रहेगा? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो di छोटो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम इट्स मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर इज x स्क्वायर। बट ये ऐसे बहुत सारे टुकड़े आर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू l, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, they are ranging from 0 to l. So can I, if I want to find total moment of inertia, बोलिए, so can I integrate this equation? ये हो जाएगा I, which will be integration of di, which will be integration of dm x square, which will be integration of, yes sir, dm ये है alpha x plus beta into dx into x square का integration बेटा integration from 0 to l, बोलो। तो यहाँ पर i लिखा जाएगा, मैं फटाफट इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा अल्फा एक्स क्यूब dx प्लस बीटा एक्स स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू l, और ये भी हो जाएगा 0 टू l, यस और नो सर। तो यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, i विल बिकम इक्वल टू बेटा अल्फा x 4/4, x 4/4 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? l 4/4, बिकॉज अपर लिमिट l है, लोअर लिमिट तो 0 है, और दूसरा वाला हो जाएगा बीटा, yes sir, ये हो जाएगा l3/3। so this is the resultant moment of inertia about that axis. I hope you all have understood this question. I have selected the question, that's why. okay, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा। next question. okay, so question number 10 I have done. I'll do question number 13. the topmost and the bottommost velocities of a disk are v1 v2। इसका क्या है? v1, और इसका क्या है? v2, और कह रहा है v1 is greater than v2। अरे बहुत इजी है ये तो। I want to find, and the radius is r, find the angular velocity omega। मैंने आपको शायद angular velocity फाइंड करने का तरीका बताया था। ओके, आपको मालूम है कि अगर इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, ये जा रहा है v1 से, हाँ भाई, और ये जा रहा है v2 से। क्या कर रहे हैं? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन सीधा बना दें, यहां से भी एक लाइन ऐसे खींचनी है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो ये सब आप क्या कर रहे हो? इस पॉइंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियसली वो घूमता रहेगा मींस ओमेगा रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब दिस पॉइंट विल बी कंसीडर्ड टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बॉडी जो है वो आगे चलेगा भी और घूमेगा भी। बट अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ सिर्फ इंस्टेंटेनियसली उसको रोटेट कराना है तो वो ये पॉइंट पर करेगा, और ये उसका तरीका है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का। ओमेगा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v relative अपॉन r डिस्टेंस बिटवीन देम। v relative कितना है दोनों के बीच में? v1 माइनस v2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बेटा? 2r। और आपको मालूम है v1 बड़ा है तो ये पूरी चीज ऐसे घूमने वाली है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसको उल्टा करके इसको दे दो। सो नेट वेलोसिटी कितना हो गई इसकी? v1 माइनस v2। ये अगर आपने हिंज पकड़ लिया, बोलो तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2r ना? यस और नो सर? सो ओमेगा विल बिकम v1 माइनस v2 बाय 2r। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, question number 15. A solid body starts rotating about a stationary axis with angular acceleration alpha is given as 2 into 10 raised to minus 2 t
radian per second square. So as a function of time is given. How soon after the beginning of rotation will the total acceleration vector of an arbitrary point of a body form an angle of 60 degree with the velocity vector? हाँ सर, कैसे करेंगे इसको? क्या हो रहा है? कुछ समय बाद क्या हुआ? ये वेलोसिटी वेक्टर है. हाँ भाई, कह रहा है नेट एक्सेलरेशन वेक्टर जो था एक समय पर एट टाइम t एक समय पर 60 डिग्री बना रहा है विद वेलोसिटी वेक्टर. बराबर है क्या? मुझे ये फाइंड करना है. मुझे क्या फाइंड करना है? हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग, मतलब मुझे टाइम t निकालना है. सपोज टाइम 0 पर यहां से शुरू हुआ, कुछ समय बाद जब वो घूमता गया तो एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री. ओके, तो मुझे निकालना है ये टाइम कितना है. हाँ सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हमको पता है कि इसको दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं. ए को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं. ये हो जाएगा AT और ये हो जाएगा ACP. बोलो सही है ना? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. बिकॉज ये ऐसे टेढ़ा है तो उसको दो पार्ट में तोड़ सकते थे. ए cos थीटा, ए sin थीटा. बोलो, कैन आई से tan 60 is ACP by AT. tan 60 is √3. ACP बेटा is omega square r and AT is r alpha. ये cancel, so √3 will become omega square by r. अच्छा सर, ओमेगा है, ओमेगा चाहिए मुझे, अल्फा दिया हुआ है. कैन आई से ओमेगा से अल्फा से अगर ओमेगा निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt करना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा? क्वेश्चन में अल्फा दिया था. हमको फाइंड करना है कि कुछ समय बाद, ओके, क्वेश्चन में अल्फा दिया था. हमको फाइंड करना है कि कुछ समय बाद एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर बिकमिंग 60 डिग्री विद वन अनदर. तो हमने क्या किया? इसको दो भाग में तोड़ दिया, AT एंड ACP. हमने कहा tan 60 is ACP by AT. ACP का फॉर्मूला वाज ओमेगा स्क्वायर r, AT का फॉर्मूला वाज r अल्फा. कैन आई कैंसिल द r and the alpha will remain over here. So यहाँ से अल्फा आ गया. बट एक चीज नोट करने की है कि यहाँ पर अल्फा दिया है, यहाँ पर ओमेगा मांगता है. आपको एक चीज पता है कि अगर उल्टा जाना है, अल्फा टू ओमेगा एंड ओमेगा टू थीटा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और ऐसे जाना है तो आपको डेरिवेटिव निकालना है. बोलिए, ये सेम एज काइनेमेटिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पर हमको ओमेगा इज अल्फा dt. अरे बोलो यार, जैसे v was a dt इंटीग्रेशन ऑफ दैट, यस और नो सर? v की जगह ओमेगा, ओके, एंड अल्फा अल्फा dt. अब यहाँ पर ये √3 का √3 रखते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है. ओके, 0 से लेके t तक. टाइम पीरियड हमको पता ही नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके t तक. अल्फा कितना है बेटा? 2 × 10⁻² t dt का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 10⁻² t. ये तो अल्फा ही है ना सिंपल. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 2 × 10⁻² t dt will become t²/2. स्क्वायर है 2 × 10⁻² t. बोलो, and this is from the integration will be from 0 to t, yes or no? ये 2 ऐसे ही उड़ गया, ये हो गया 0.01. तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ t⁴ अपॉन 2 × 10⁻² t. बोलो, यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा? 200 हो गया. ये देखो -4 नीचे जाके 200. सो दिस विल बिकम व्हाट सर? दिस विल बी √3 × 2 × ये नीचे आ गया तो 10⁻² हो गया. क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा t³. यहाँ पर t विल बिकम √3 200 का क्यूब रूट. आपको आंसर सेकंड्स में दिखा देगा. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? तो दिस वाज अ लिटिल कैलकुलेटिव बट यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंगली. बोलो, और आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर
17 पर आते हैं, क्या कह रहा है? टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर अप्लाइड ऑन अ स्पूल। ये क्या है? F1 है। सिमिलरली बेटा ये क्या है? F2 है। कह रहा है ये तो R है और ये क्या है बेटा? 2R है। सही। टू फोर्सेस F1 and F2 are applied on a spool of mass m and moment of inertia passing through the center of mass. Find the ratio of F1 and F2 so that friction is 0. यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ का जो फ्रिक्शन है that is equal to 0, ये कंडीशन किया हुआ। And given that I is less than 2mr square, moment of inertia जो है उसका less than 2mr square। क्लियर है सबको? ओके, अब कैसे करेंगे? हाँ भाई, कैन आई से फोर्स लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है। सिंस फोर्स लग रहा है और टॉर्क लग रहा है, ओके, कैन आई से ACM will become equal to RL। बोलो, ये थोड़ी देर बाद वो रोल करेगा ना, फोर्स भी लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो ऐसे ऐसे एक्ट करेगा ताकि ACM will become equal to R alpha। What is ACM बेटा? Net force upon total mass। R is 2R, radius is 2R of the body है, ये मत लेना। अल्फा is tau by I। अच्छा, टॉर्क अबाउट सेंटर इसका है F into 2R, F1 into 2R है ना, F1 into माइनस F2 इंटू, हाँ बिकॉज वो तो उल्टा, देखो ये है तो ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा, बोलो, और हमको तो ऐसे बनता है ना, ACM ऐसे होना चाहिए, अल्फा ऐसे होना चाहिए, ये तो ऐसे ही घुमा रहा है, ये पॉजिटिव रहेगा अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज लेस देन 2mr स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या करना है हमको। कैन आई से F1 प्लस F2 बाई M विल बिकम 2R। ओके, ये हो जाएगा 2F1, ओके, माइनस F2, R कॉमन निकाल लेते हैं अपॉन I। बोलो यस और नो सर। कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? कैन आई से F1 I plus F2I will become M, 2M R square 2F1 minus F1I, okay, plus F2I, okay, is equal to 2mr square 4mr square F1 minus 2mr square F2। F1 F2 एक साथ में ले लो बेटा, तो F1 यहाँ पर आ गया, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर F1 आए, सो यहाँ पर F1 इधर आ गया, तो 4mr square F1 माइनस F1 आए, ये उधर चला गया, तो ये जाएगा F2 आए प्लस 2mr square F2। बोलते हैं तो F1 क्या हो गया? 4mr square माइनस आए, बोलो, अपॉन, सॉरी, F1 अपॉन F2 क्या हो गया? F1 यहाँ से निकाल लिया, F2 यहाँ से निकाल लिया, इसको नीचे लिया, तो ये हो जाएगा I प्लस 2mr स्क्वायर, I प्लस 2mr स्क्वायर अपॉन 4mr स्क्वायर माइनस, एंड I इज लेस देन 2mr स्क्वायर को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा। इट कैन नॉट बी I माइनस 4mr स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? इसलिए मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट आंसर व्हिच वी रिक्वायर, I प्लस 2mr स्क्वायर एंड 4mr स्क्वायर माइनस I। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके। बस यहाँ पर हमको कौन सा कंडीशन कराना है? प्योर रोलिंग का कंडीशन कराना है। प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या रहेगा? ACM विल बिकम इक्वल टू व्हाट बच्चा? R अल्फा, ओके। सो F1 F2 ऐसे एक्ट कर रहे हैं ताकि फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। अगर F1 F2 ये काम नहीं कर पाते
तो यहाँ पर फ्रिक्शन आगे या पीछे एक्ट करता ताकि ACM R अल्फा बना देता, मगर कुछ समय बाद ACM R अल्फा होना ही चाहिए, चाहे फ्रिक्शन हो या चाहे फ्रिक्शन ना हो, चाहे फ्रिक्शन एक्ट करे या फ्रिक्शन एक्ट नहीं करे, आपको ACM इज इक्वल टू R अल्फा कैसे भी करके बनाना है ऑन रफ ग्राउंड। क्लियर? Now we doing next question, question number 19. बेटा क्या कह रहा है? Cube is resting on an inclined plane. If the angle of inclination is gradually increased, what must be the coefficient of friction between the cube and the plane so that cube slides before toppling and cube topples before sliding? यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, inclined plane है और एक क्यूब है यहाँ। ओके, आपको मालूम है कि mg इधर है, ये हो जाएगा mg क्या भाई cos थीटा, और ये क्या रहेगा mg sin थीटा। इसको पकड़ते हैं a, तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा a/2। यस और नो? अच्छा, पीछे कौन एक्ट करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा? म्यू n, बट n इज mg cos थीटा। कैन आई से फॉर स्लाइडिंग नीचे अगर जाना है तो mg sin थीटा should be greater than mu mg cos theta, which is maximum value of friction. हाँ भाई, sin theta upon cos theta will become tan theta should be greater than mu. आपको याद है ना, इसको एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते थे। ओके, तो ये हो गया स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग कराना है तो tan theta should be greater than mu. ये स्लाइडिंग का कंडीशन। कैन एनीवन टेल मी टॉपलिंग का कंडीशन क्या है? फॉर टॉपलिंग इसका जो टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट, ये ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे टॉपल करेगा, शुड बी मोर देन दिस टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। ओके, लेट दिस डिस्टेंस बी a/2 ना बेटा, तो ये भी तो a/2 है, आधा ही तो है। कैन आई से mg sin थीटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका टॉर्क अगर टॉपल कराना है शुड बी ग्रेटर देन mg cos थीटा, बोलो, इनटू a/2। ये तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे बिठाएगा उसको, अगर ये ज्यादा हो गया ऐसे तो इस पॉइंट पर वो टॉपल कर पाएगा। तो ऐसे ये कैंसिल mg कैंसिल, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1। if tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 वो टॉपल कर जाएगा, एंड if tan थीटा इज ग्रेटर देन mu वो स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन कैसे बनाएंगे रिजल्ट का कि if mu is less than 1 so it will slide before toppling, and if mu is greater than 1 so it will topple before sliding। क्या हो रहा है? समझ में आ रही है बात? ये रिजल्ट बन गया। इन दोनों को कंपेयर करो, अगर म्यू 1 से कम है, ओके, म्यू 1 से कम है, क्योंकि अगर म्यू ज्यादा हो गया ना 1 से तो ये कंडीशन में आ जाएगा ना, और अगर म्यू से 1 से कम है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, ओके, ताकि हमको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 19 इज डन। ओके, वी कम टू द 21st क्वेश्चन। कह रहा है एक यूनिफॉर्म डिस्क है, मास m का, रेडियस r का, which is rotated with an angular speed omega naught, तो उसको घुमा रहे हैं हम लोग ओमेगा नॉट से। It is placed on a rough surface, रफ सरफेस इसको रोकने की कोशिश करेगा और थोड़ी देर के बाद में इसको रोक देगा। पूछा है कितने टाइम बाद, कितने समय बाद वो रुक गया एंड कितना एंगल उसने कवर किया बिफोर स्टॉपिंग। तो यहाँ पर आप सबको ध्यान देना है क्या हो रहा है। ठीक है भाई, ये घूम रहा है, इसको हमने रफ सरफेस पे रखा। रफ सरफेस क्या जनरेट करेगा? एक रिटार्डिंग टॉर्क जनरेट करेगा, एंड रिटार्डिंग टॉर्क उसको थोड़े समय बाद आके रोक देगा आफ्टर टाइम 0। आई आर अंडरस्टैंडिंग। बट एक चीज नोट करने की है यहाँ पर कि क्या ये जो टॉर्क है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। आप देखो, मैं छोटे छोटे रिंग्स बनाता हूं यहाँ पर,
पूरे डिस्क को मैं रिंग से भर दूंगा। कैन आई से इधर एक फ्रिक्शन लगेगा, इधर भी एक लगेगा, इधर भी एक लगेगा, इधर भी एक लगेगा। फ्रिक्शन का जो टॉर्क बनेगा ऐसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? कैन आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट है, तो कैन आई से टॉर्क ओके बढ़ता जाएगा जैसे मैं डिस्क के सेंटर से दूर जा रहा हूं, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है। दैट मीन्स टॉर्क throughout the disk is not constant. That means sum is based on calculus. आप बोल सकते हैं, सही है ना? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है बेटा, तो टॉर्क चेंज हो रहा है, टॉर्क चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म नहीं है। दैट मींस द सम इज ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म चीजों के बारे में बात है तो हमको वही स्टेप्स अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया था। अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। लुक एट दिस डिस्क लिया, ओके। स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप है सिलेक्ट ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? सेंटर ओ। स्टेप 2 कैलकुलेट मास पर यूनिट। अच्छा 2D 1D के 3D? 2D सर, तो वील सिलेक्ट सिग्मा विच इज मास पर यूनिट एरिया। मास कितना है m है, यूनिट एरिया दैट विल बिकम पाई आर स्क्वायर। यस और नो सर? Step 3 go to x, take dx। तो यहां पर ये ओरिजिन पकड़ा, इधर से हम लोग x जाकर एक छोटा सी एक रिंग पकड़ते हैं, पार्टिकल तो नहीं पकड़ सकते हैं। go to x, take dx। अच्छा इसका मास कितना रहेगा? इसका मास रहेगा, रिंग का मास कितना रहेगा बच्चा? dm रहेगा। इस रिंग का मास कितना है बेटा? dm है, थोड़ा ध्यान से ओके। और क्या मैं इमेजिन कर सकता हूं यहां पर इनफाइनाइट रिंग्स है ऐसे 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 ऐसे, जिसका फ्रिक्शन जो है इन पर एक्ट करेगा और रिटार्डिंग टॉर्क जो है उन पर एक्ट करेगा, और रिटार्डिंग टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमको सब रिंग्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले हमने एक सैंपल को किया, फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिया। यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to r, 0 to r। बोलो। स्टेप 3, स्टेप 4 कैलकुलेट मास dm। छोटा मास dm। dm का फॉर्मूला क्या रहेगा? dm विल बी मास पर यूनिट एरिया इनटू इट्स एरिया। बोलो। अच्छा मास पर यूनिट एरिया क्या है? अरे यही तो है, m by pi r स्क्वायर। एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या रहेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। रिंग को अगर आप काट के खोल देंगे तो क्या हो जाएगा उसका एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। उसका लेंथ कितना रहेगा बेटा? 2 pi x, और ब्रेथ उसका है dx। तो ये पाई और पाई वैसे ही उड़ गया, ये हो गया dm विल बिकम 2m by r स्क्वायर x dx। ये हो गया मास m। बोलिए। अच्छा बट ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो उसका फ्रिक्शन मांगता है। तो स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट फ्रिक्शन ऑन एलिमेंट। अच्छा फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एम जी, म्यू डीएम जी। मास डीएम है इसका। कैन आई राइट दिस एज म्यू डीएम इज 2m by r स्क्वायर x dx जी। बोल सकते हो ना? ये df मिला। स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट डी टाउ। इसका टॉर्क निकालना है, बिकॉज ये तो फ्रिक्शन है, ये तो फ्रिक्शन है। ये अगर ऐसे घूम रहा है बिकॉज, तो हर समय पर यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन, यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन, यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हर जगह पर आएगा, बट उसका हमको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है सर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r नहीं है, यहाँ से x है फ्रॉम द सेंटर। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x, so it will be into x। so can I multiply this equation by x? ये हो जाएगा mu 2m by r square into g, x into x ये हो जाएगा x square dx। I hope everyone is understanding। थोड़ा complicated है but बहुत अच्छा सम है। तो ये मिल गया d tau, but हमको तो मालूम है d tau constant नहीं है, d tau is changing, so I will integrate to find the resultant torque। So step number 6 will become to find the total torque।
will be integration of this d tau, okay, will become, हाँ भाई ये इसको इंटीग्रेट करना है. अच्छा सब रिंग्स कहाँ से कहाँ तक रेंज हो रही है? द रिंग्स आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to r, रिंग 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 कहाँ तक जा रही है भाई? ओरिजिन से लेके आखिर तक जा रही है. सो आई विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 to r. अच्छा भाई ये क्या हो गया? म्यू 2m g r स्क्वायर x स्क्वायर dx. आपको इंटीग्रेशन आता ही है, फटाफट कर लेते हैं. ये म्यू 2m g r स्क्वायर ये हो जाएगा r क्यूब बाई 3. बोलो हाँ भाई. तो ये क्या हो गया? ये हो गया ये कट गया. ये हो गया 2/3 म्यू एम जी आर. अरे मजा आ गया सर, ये मिल गया टॉर्क. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा एक बार आपको टॉर्क मिल गया, द रिजल्टेंट टॉर्क वंस यू गेट, क्या निकालना है आपको? आपको निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है टाइम. अच्छा टॉर्क से अल्फा मिल जाएगा. टाउ इज इक्वल आई अल्फा. टॉर्क क्या है? 2/3 म्यू एम जी आर. I for disk is what? mr square by 2 sir into अल्फा. हाँ तो ये m और ये r, ये m और ये r कैंसिल हो गया. ये 2 2 सा हो गया 4/3 म्यू g by r. सही कर रहे हो ना सर? हाँ ये तो मिल गया अल्फा. अच्छा आपको पता होना चाहिए अल्फा नेगेटिव है बिकॉज इट इज द रिटार्डिंग एक्सेलरेशन. दिस इज द रिटार्डिंग टॉर्क. अब क्या फाइंड करना है सर? अब आपको फाइंड करना है फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्क रोटेट्स. हाँ भाई ठीक है. कैन आई से ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस अल्फा t. ओमेगा 2 तो 0 है, ओमेगा 1 ओमेगा नॉट है. अल्फा को माइनस लिखो, दैट इज 4/3 म्यू g by r into t. सो t विल बिकम ओमेगा नॉट बाय 4/3 म्यू g by r. आप आंसर चेक कर सकते हो, सब लोग सही है. अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. सो दिस इज द टाइम t. ओके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्या फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है भाई? और हमको फाइंड करना है angle rotated theta. Theta is omega 1 t plus half alpha t square. बट एक काम करता है, ये यूज नहीं करता यार, ये लंबा हो जाएगा. कैन आई से ओमेगा 2 स्क्वायर इज ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. ओमेगा 2 स्क्वायर 0, ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा. अच्छा सर अल्फा आपने जो ढूंढा वो इधर डाल दो. तो थीटा विल बिकम व्हाट सर? ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा. अल्फा अभी मैं भूल चुका हूं जो यहां पर मैंने लिखा. आई होप यू ऑल विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड गेट द रिजल्टेंट आंसर. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? थैंक यू. ओके फ्रेंड्स, 23rd, a rod of mass m and length 2r. तो ये इसका भाई मास m है, लेंथ 2r है. is fixed along the diameter of a ring. ये ring है of same mass and इसका radius r है. the combined body is rolling. पूरा चीज रोल कर रही है. हाँ रोल कर रही है मतलब VCM is equal to r omega. VCM is equal to r omega. याद रखना है. understand? getting it? अब आगे find the angular momentum over z axis. z axis की तरह भाई, z axis तो ये है, ये तो x है, ये तो y है, तो ये तो z रहेगा. I want to find moment of inertia about this axis. How many? Can I say angular momentum about z axis का formula is mvcm into r plus ic omega. जनरल फॉर्मूला है इसका. mvcm into r ic omega. पहले हम लोग इसकी बात करते हैं mvcm into r. ओके mvcm into r की बात करते हैं. तो पहले वाला एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज mvcm into r. आप देख सकते हैं इसका भी मास n है, इसका भी मास n है. ओके और दोनों का जो सेंटर है दैट इज गोइंग विद द लीनियर वेलोसिटी vcm एंड इस एक्सिस पर मांगता है. तो कैन आई से mvcm into perpendicular distance. ये perpendicular distance है ना, and this perpendicular distance is r. नहीं बोल सकते हो? क्लियर है? अरे सही है ना भाई. ये mvcm into r, ये mvcm into r, तो ये हो जाएगा mvcm into r किसका? रॉड का प्लस mvcm into r किसका? रिंग का. सो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया पहले वाला? 2 mvcm into r. ये तो है ही, कोई बड़ी बात है नहीं.
अच्छा इसका डायरेक्शन ये पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एल बार अगर हमको ऐसे निकालना है तो इट विल बिकम आर बार क्रॉस पी बार ना, दैट इज आर बार क्रॉस एम बी बार। क्या करना है, यू हैव टू टेक योर फिंगर्स फ्रॉम आर टू एम बी, तो आर टू एम बी, तो दोनों तो ऐसे जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा मतलब अंगूठा अंदर आएगा तो विल बिकम क्रॉस, यस और नो सर। दिस इज L1, ये पहला पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं L2 की, L2 की। L2 is ICM into ओमेगा। अच्छा यहाँ पे दो बॉडीज है, एक बॉडी नहीं है बेटा, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेंटर इज mr², बट इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा बेटा, ml²/12, रॉड है भाई ml², l इज 2r²/12 बोलो इनटू ओमेगा, दिस इज L2। तो L2 को कैसे लिखा जाएगा बच्चा, L2 विल बिकम mr² प्लस ये हो जाएगा 4/3 विल बिकम mr²/3 इनटू ओमेगा। सो L2 विल बिकम व्हाट सर, 4mr²/3 इनटू ओमेगा, बट ओमेगा इज VCM/r, अरे VCM इज r ओमेगा में, ये रोल कर रहा है तो ये हो जाएगा VCM/, हाँ ये समझ में आ रहा है क्या, तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो क्या हो गया 4mr VCM/3। अच्छा इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, ओमेगा ऐसे ही है तो अंगूठा अंदर है, अंगूठा अंदर है मतलब क्या, क्रॉस। सो कैन आई से रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम L1 प्लस L2, और इसका रिजल्टेंट आंसर आया 2m VCM/r, और दूसरे वाले का आया 4/3m VCM/r। बोल सकते हो यस और नो, 3 2 6 and 10, 10/3m VCM into r, and the direction will be denoted by cross. Did you understand about the z axis, yes or no sir? So this is how you do the 23rd question. इसको प्रैक्टिस करना है आपको बार बार, आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द होल थिंग, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 25th सम पर आते हैं। क्या कह रहे हैं 25th सम, a horizontal disc is rotating freely about, तो ये डिस्क है जो घूम रहा है with an initial frequency of 100 rpm, ये इनिशियल केस है। फाइनली क्या हुआ, a small piece of wax, हाँ भाई इसके ऊपर एक वैक्स का टुकड़ा जिसका मास 10 ग्राम है, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर 9 सेंटीमीटर गिर गया, राइट। If the number of revolutions now become 90 rpm, calculate the moment of inertia of the disc, इसका है निकालना, ठीक है, easy question। Can I say initial angular momentum of the system is I omega, या I initial omega initial, I initial is I जो मुझे पता नहीं है इसका, omega initial को लिख सकते हैं 2 pi n initial, बोलो। Can I write this as L initial will become I into 2 pi n initial, n initial तो 100 है सर, इक्वेशन नंबर 1 पकड़ो। शाह सर L फाइनल के बारे में क्या ख्याल है, become I फाइनल ओमेगा फाइनल, बट I फाइनल में दो भाग है, अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आएगा ही, प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr² into ओमेगा फाइनल इज 2 pi n फाइनल, बोलो। So will become I plus m, m is 10 ग्राम, ग्राम into -3 will become 10 raised to -2 kg, बोलो। और ये 9 सेंटीमीटर मतलब 9 into 10 raised to -2 मीटर, तो mr² हो जाएगा 10 raised to -2 into r², 9² is 81 into 10 raised to -4 into 2 pi n final 90, ये हो जाएगा I plus mr²। L फाइनल, आपको एक चीज पता है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, दैट मींस L इनिशियल विल बिकम L फाइनल। तो कैन आई से अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो L इनिशियल विल बिकम इक्वल टू L फाइनल, इसका मतलब L इनिशियल कितना है बेटा, I into 2 pi 100, यहाँ पर जगह नहीं है भाई, इसको मैं रख कर रहा हूँ, दिस विल बी I into 2 pi 100 एंड व्हाट इज L फाइनल, I प्लस ये हो जाएगा 81 into 10 raised to -6, 2 pi into 90, 2 pi वैसे ही कैंसिल। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 100i, ये हो जाएगा 90i प्लस 90 into 81 into 10 raised to -6, आई होप यू आर गेटिंग, तो ये हो जाएगा 10i
will become 90 into 81 into 10 raised to minus 6. तो ये 10 और 10 तो वैसे ही उड़ गया, तो I will become 9 into 81 into 10 raised to minus 6. सर आंसर मिल गया kg meter square. Yes or no sir? So this is how you do that 25th question. Okay. 27, 29 and 31 I'll do next time. Okay. And after that we will be starting in the new chapter, that is simple harmonic motion. Thank you.